ایک بار پھر نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، سارے بھائی تاجدار ختم نبوت۔ لہٰذا میرے بھائی میں یہ کر رہا ہوں، اگر محبت کسی سے کرنا چاہتے ہو ہر اعتبار سے میرے نبی کی ذات محبت کی مستحق ہے۔ خدا کی قسم جن صحابہ نے میرے نبی کو دیکھا، کریم آقا کا ایک غلام ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں وہ اس انہماک سے میرے نبی کا دیدار کرتا ہے کہ اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے، پلکیں بھی نہیں جھپکتا، اتنا میرے نبی کے دیدار کا اثیر ہے، حضور کی زلفوں کا اثیر ہے۔ کیوں نہ ہو یہی بات تو اعظم چشتی کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کریم نبی کی اعجاز نظر وچ تیری، کی اعجاز نظر وچ تیری، تے جو آوے وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی، تے وچ نینا کجلے سہارے، خلق تیرے مولی دنیا، کہ کوئی ورلا جان بچاوے، اعظم ایڈا اے سونا ساکی، اے سانو کدرے نظر نہ آوے۔ لہٰذا میرے بھائی میرے کریم آقا سارے کہہ دیں صلی اللہ، سارے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم میرے نبی کی محبت وہ ہے جو بندے کو دلیر بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم جن صحابہ نے میرے نبی سے محبت کی ہے انہوں نے نہ اولادیں دیکھی، نہ ماں باپ دیکھا، نہ مال و منال دیکھا، نہ گھر بار دیکھا، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے نظر آتے ہیں لوگوں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اور اولاد سے پیارے۔ خدا کی قسم جن لوگوں کو میرے نبی نے تیار کیا، جو میرے نبی کی زلف گرے گیر کے اسیر بن گئے، یہ نہیں کہ میرے نبی کا یہی کردار ہے۔ میرے بھائی میرا نبی بااخلاق بھی ہے، حضور کا خلق مبارک بھی ہے، لیکن جہاں پہ تلوار کی ضرورت پیش آئی میرے نبی کے غلاموں نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور کیجئے بدر کا میدان ہے، میرے کریم آقا کی ذات پہ غلاموں کو کتنا ٹرسٹ ہے، کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ خدا کی قسم ایک سائیڈ پہ ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے پاس خرد و نوش کا سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ماہر جنگجو بھی ہے، لیکن دوسری طرف جن کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہے، چند تلواریں ہیں، وہ بھی زنگ آلود ہے، مجاہد بھی پورے نہیں ہے، 313 لوگ ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے۔ خدا کی قسم آج جو منظر آپ کو فلسطین میں نظر آ رہا ہے، اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود تھوڑی سی کروٹ فلسطین نے بدلی ہے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی طاقت خوف زدہ نظر آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے اقبال کی وہ بات یاد آ گئی۔ اقبال کہتا ہے شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا غارت کرے باطل بھی تو۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اقبال کے اس شعر کے صحیح مصداق ہیں فلسطین والے۔ آپ ہیں نا فلسطین والوں کے ساتھ؟ دعا کریں اللہ فلسطین والوں کو کامیابیاں عطا فرمائے،
अल्लाह उनको कुफार पे गलबा अता फरमाए। और फरमाए, इकबाल कहता है शोला बन के फूंक दे खाशाक के गैरुल्लाह को। इकबाल कहता है ये जो बातिल कुव्वतों का तेरे ज़हन में एक तसव्वुर बैठ गया, ये डर जाएंगे। कहता है शोला बन के फूंक दे खाशाक के गैरुल्लाह को। खौफे बातिल क्या, गारत करे बातिल भी तू बातिल के से क्यों घबराता है, डरता क्यों है इन ताकतों से। अबू बकर से लेके मोहम्मद बिन कासिम तक, तारिक बिन जियाद तक, सुल्तान मोहम्मद फातेह तक, वो तेरे ही आबाओ अजदाद थे जो इन लानतियों को अपने पांव के तले रगड़ते नजर आते। खौफे बातिल क्या, गारत करे बातिल भी तू। इसलिए ऐ आज की उम्मत के नौजवान, होश के नाखन ले, वो बदर का मैदान सामने लाओ जब मेरे नबी के पास सिर्फ 313 थे। अबू जाल अपने नौकर को बेचता है। आप सुन रहे हैं, सो रहे हैं? बाहर वाले कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अबू जाल अपने खादिम को बेचता है, कासिद बेचता है। जाओ पता करो उनके पास सवारियां कितनी हैं, उनके पास घोड़े कितने हैं, तलवारें कितनी हैं, मुजाहिद कितने हैं। जब वो वापस आया ना, उसका कासिद अंदाजा लगा के है अबू जाल के टुकड़ों पे पलने वाला, उसका हामी है, उसके घर में परवरिश पाने वाला। अबू जाल को कहता है, ऐ हमारे इब्ने हशाम, मेरी बात गौर से सुन। क्या? उसने कहा वो तलवारें तो उनके पास कम है, उनके पास असला भी नहीं है, वो है भी कमजोर से, मुट्ठी भर लोग हैं, तेरा लश्कर उससे 3 गुना ज्यादा है। लेकिन मेरी बात अगर मान ले तो तेरी मेहरबानी, तेरा इसमें फायदा है। उसने कहा क्या कहना चाहता है? कहता है जो बदर में मुस्तफा के साथ आए हैं ना, जो 2-2 दिनों से भूखे भी हैं, तलवारें भी जंगालूद हैं, मुजाहिद भी कम हैं, मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ उनसे टक्कर न लेना, उनसे टक्कर न लेना, पछताएगा। उसने कहा क्या बकवास कर रहा है, मेरे पास 1000 से ज्यादा मुजाहिद हैं, जंगजू हैं, रक्सो सुरूर की माफले हैं, मेरे पास शराबो कबाब है, अयाशी का सारा सामान मौजूद है, उनसे मैं क्यों न टकराऊं। कहने लगा तू सच कह रहा है। अब उस कासिद के जुमले सुनिए जो अबू जाल के टुकड़ों में पलने वाला। कहने लगा मैंने उनको देखा है, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, उनके अंदर तेरे बारे में जो गुस्सा है, जो गजब है, जो उनकी आंखें खून उबल रही हैं और उनके मसूड़े खून उबल रहे हैं, खुदा की कसम गुस्से की वजह से मैंने देखा है वो अपने सर पे कफन बांध के आए हैं, खुद भी मरेंगे, तेरा भी कुछ नहीं रहने देंगे। इसलिए आज ज़रूरत है फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। आइए आज वो सवेरा तुलू होने वाला है। मेरे भाइयों फ़लस्तीन वालों के साथ खड़े हो जाओ। आज फ़लस्तीन की बेटियां, फ़लस्तीन की माएँ बहनें आपको पुकार रही हैं, आइए हमारी मदद के लिए। आप अगर वहाँ नहीं जा सकते, सोशल मीडिया का दौर है, अपनी फेसबुक पे, अपने वो क्या कहते हैं टिकटॉक पे, या जो नौजवान इस चीज़ से वाबस्ता है, कम अज़ कम एक ट्रेंड तो चला सकते हैं, यहाँ से एक आवाज़ तो उन तक पहुँचा सकते हैं। आपकी एक आवाज़ भी फ़लस्तीनी मुजाहिद को सहारा दे सकती है, उनके हौसले को जिला बख्श सकती है, उनके हौसलों को बुलंद कर सकती है। इसलिए आइए वो जो बदर वाला, वो जो ओहद वाला किरदार सहाबा का था, वो अदा कीजिए, अपनों को और गैरों को पहचानिए। हम तो मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसने कहा कि मेरे गुलाम जसद वाहिद की तरह है, कंघी के दंडानों की तरह है, काटा चुभे किसी को तो रोते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिस्म का कोई हिस्सा भी जख्मी हो तो एक मसलन पाँव पे कांटा चुभे, तकलीफ दिल को होती है, जिस हिस्से को तकलीफ हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है? नबी तो फरमा गया मेरे मानने वाले जस्दे वाहिद हैं, एक जिस्म की मानद हैं। फ़लस्तीन क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? अगर फ़लस्तीन वालों की तकलीफ को महसूस नहीं करेगा कल नबी को क्या मुंह दिखलाए? खुदा की कसम अपने आबा व अजदाद पे गौर कर। मैंने कहा ना, इकबाल कहता है शोला बन के फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफे बातिल क्या गारत करे बातिल भी तू।
सुल्तान अय्यूब का दौर है। सुल्तान अय्यूब ने जब उसने ना किया था फतह बैतुल मुक़द्दस को, और उसके मुकाबले में वो लांग थी, वो रेजिनाल्ड या उसका क्या नाम था, वो गुस्ताख था, वो आया था, बाकी कैदियों को माफ कर दिया, फरमाया इसके साथ मैं आप निपटूंगा, इसकी गर्दन जुदा करूंगा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बाकियों के साथ ये नरमी और इसके साथ ये सख्ती क्यों है? कहने लगा ये वो बदबख्त है जिसने मुसलमानों को काफिले को रोका था और कहा था बताओ, बुलाओ अपने नबी को, बुलाओ अपने मोहम्मद को, तुम जो कहते हो मदद करते हैं, बुलाओ अपने नबी को। आज मैं इसे बताना चाहता हूँ, नबी की तो ज़ात ही बड़ी है, तेरी सरकोबी के लिए नबी ने अपना नौकर भेज दिया है, अपना खादिम भेज दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे आबा व अजदाद तो वो थे, इसलिए अगर आप फ़लस्तीन नहीं जा सकते तो यहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं, ज़रूर आवाज़ उठाइए। आप इंशाअल्लाह एक नारा लगाएं, इस्लाम